آپ نے سن لیا؟ میں نے گیلانی صاحب کو اب یہ پتہ نہیں ہے کیا، یہ پتہ نہیں ہے کہ آپ نے کہاں سے لی ہے خبر؟ سر اب یہ آزاد صحافی ہے، اب یہ آزاد صحافی ہے، بالکل آزاد ہے۔ اچھا یہ کہہ رہا ہے ٹی وی چینل سے آزاد نہیں ہے، یہ سوشل میڈیا والا صحافی ہے، آزاد صحافی ہے، اس لیے یار چیزوں کی خبر دے سکتا ہے۔ آپ تیار ہیں بھائی؟ ہاں جی کہاں سے شروع کریں تھا؟ ایک منٹ سر، آپ لوگوں نے تو 5 بندوں نے آنا تھا۔ کون سا مسنگ ہے؟ پتہ نہیں کون سا مسئلہ ہے، یہ تو آپ بتائیں۔ یہ بھی آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ ہمارے انتہائی محترم اور ہمارے مخدوم جناب یوسف رضا گیلانی صاحب اپنے رفقاء کے ساتھ تشریف لائے ہیں۔ یہ ان کا اپنا گھر ہے اور یہاں آنے میں ان کے لیے کوئی کسی تکلف کی ضرورت نہیں ہوتی، لیکن اس وقت ان کی تشریف آوری ایک خیرسگاری کے جذبے سے ہیں۔ وہ ہمارے اس وقت قومی اسمبلی میں پی ڈی ایم کے سینٹ کی رکنیت کے لیے مشترکہ امیدوار ہیں اور انشاءاللہ العزیز وہ کامیاب بھی ہوں گے۔ اور جب سے اعلان ہوا ہے کہ یوسف رضا گیلانی صاحب قومی اسمبلی سے سینٹ کا انتخاب لڑ رہے ہیں، حکومتی حلقوں میں کھلبلی مچ گئی ہے اور انہیں اپنے صفوں کے اندر عدم اعتماد اور ان کی جو خلفشار ہے وہ ان کو صاف طور پر نظر آ رہا ہے۔ اس وقت ان کے مقابلے میں جناب حفیظ شیخ صاحب الیکشن لڑ رہے ہیں۔ ہر حکومت میں ملک کی وزارت خزانہ ان کے ہاتھ میں رہی، ملک کی معیشت ان کے ہاتھ میں رہی۔ آج اس وقت پھر ایک وزارت خزانہ کا قلمدان ان کے ہاتھ میں ہے بحیثیت مشیر کے۔ لیکن یہ احساس صرف عام آدمی کو نہیں بلکہ اس سے کہیں زیادہ پارلیمنٹیرین کو ہونا چاہیے جو دعویٰ رکھتے ہیں کہ ہم عوام کے نمائندے ہیں۔ وہ عوام کے احساسات کے نمائندے ہوتے ہیں۔ عام آدمی آج اس وقت 2-2.5 سالوں سے جس کرب سے گزر رہا ہے اور پاکستان جس طریقے سے معاشی انحطاط کا شکار ہے، مہنگائی ہے، عام آدمی کی قوت خرید جواب دے چکی ہے، آئے روز بجلی کی قیمتوں میں اضافے ہو رہے ہیں، گیس کی قیمتیں ہیں، آٹا ہے، چینی ہے، گھی ہے، سب چیزیں مہنگی سے مہنگی تر ہوتی چلی جا رہی ہیں۔ اور اس کا ذمہ دار کون ہے آخر؟ اس لیے ہم اسمبلی کے اندر موجود ممبران کو بھی یہ احساس دلانا چاہتے ہیں کہ ایسی ہی لوگوں کے ہاتھوں میں اگر ہم نے ملک کے اہم مناصب حوالے کرنے ہیں، قلمدان حوالے کرنے ہیں، تو آپ ملک کو کہاں لے جانا چاہتے ہیں؟ اس اعتبار سے آج عام آدمی کی مانگ ہے کہ
मुल्क के अहम और कलीदी जो हमारे मनासिब हैं उस पर ऐसे लोगों को आना चाहिए कि जो मुल्क को इस बहरान से निकालने में कोई किरदार अदा कर सके। इस हवाले से जनाब यूसुफ रज़ा गिलानी साहब हमारे साबिक़ वज़ीर आज़म हैं पाकिस्तान के, और उनकी शख्सियत जब इस हवाले से मैदान में आई तो इसने मामले को संजीदा बना दिया और इसको हमने मज़ीद आगे इसको संजीदा बनाना है। अपने मुल्क के साथ वफादारी और आम आदमी के साथ हमदर्दी की अलामत यह है कि इस वक्त उनको हम हर कीमत पर कामयाब बनाएं। PDM के वो मुश्तरका उम्मीदवार हैं और इंशाअल्लाह हर जमात जो PDM से वाबस्ता है भरपूर तौर पर उनकी हिमायत में बिल्कुल एक सफ़ है और एक अच्छा मार्का इंशाअल्लाह लड़ेंगे और हमारी कोशिश होगी कि हम ये मार्का कामयाबी के साथ सर भी कर सकें। हमारी दुआएं हैं कि अल्लाह ताला गिलानी साहब को कामयाब बनाए। और हमारे स्पीकर भी रहे हैं, हमारे वज़ीर आज़म भी रहे हैं और अब हमारे सेनेट के चेयरमैन भी अगर वो बनते हैं तो इससे उनका एजाज़ नहीं हम सब का एजाज़ है इंशाअल्लाह। उसमें साथ हूँ आपके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मौलाना फजलुर रहमान साहब PDM के सदर हैं, उनके पास मैं आज हाज़िर हुआ हूँ क्योंकि ये पहले गांव में थे। मैं पहले ही मुलाकात करना चाह रहा था मगर इनकी मसरूफ़ियत की वजह से आज मैं हाज़िर हुआ हूँ। मैं PDM का बेहद मशकूर हूँ, तमाम PDM के जमातों का और उनके अकाबरीन का कि उन्होंने मुझ पर एतमाद करते हुए मुझे नेशनल असेंबली की सेनेट की सीट से मुझे उन्होंने टिकट दिया है और इंशाअल्लाह हम उनकी उमंगों की तर्जमानी करेंगे। मैं पहले भी नेशनल असेंबली ने मुझे मुत्तफ़िका अनअपोज़ नहीं मुत्तफ़िका वज़ीर आज़म मुंतखब किया था। मैं उस वक्त भी मशकूर था, उस वक्त की अपोजिशन का भी मशकूर था कि उन्होंने मुझे एतमाद का वोट दिया था। इंशाअल्लाह आज भी हम अपनी कैंपेन शुरू की है, पॉजिटिव रिस्पांस है, बहुत अच्छा रिस्पांस है और ये जो फतह होगी वो जमहूरी क़ुव्वतों की होगी। मगर आज मैं ऐलान करना चाहता हूँ कि आज मैंने दरख्वास्त देकर जो मेंबर पार्लियामेंट हैं उनकी मैंने इज़्ज़त करवा दी है। आज उनकी इज़्ज़त वक़ार में जो इजाफ़ा हुआ है वो मेरी वजह से हो रहा है कि मैं अगर इंतखाब में हिस्सा ना लेता तो वो किसी से मिलने के लिए तैयार नहीं थे। आज वो MPA से भी मिल रहे हैं, वज़ीरों से भी मिल रहे हैं, MNA से भी मिल रहे हैं, सेनेटर से मिल रहे हैं और यही उनका हक़ बनता है कि पार्लियामेंटेरियंस की इज़्ज़त होनी चाहिए क्योंकि दे रिप्रेजेंट द पीपल ऑफ पाकिस्तान। तो इसलिए जो रिस्पांस है बहुत अच्छा है। इंशाअल्लाह PDM के मैं तमाम अकाबरीन का और अपनी पार्टी के अकाबरीन का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो मेरी सपोर्ट कर रहे हैं और मैं फ़र्दन तमाम अकाबरीन के पास मैं ख़ुद जाऊँगा और उनसे मुलाकात करूँगा और उनसे जो वो सपोर्ट कर रहे हैं मेरी, जो कि मुझसे भी ज़्यादा कर रहे हैं, तो इंशाल्लाह उनका मैं शुक्रिया अदा करूँगा। ये बताइएगा कि अभी तक आपके किस से राब्ते हुए हैं PDM के अलावा और क्या जहांगीर तरीन से आपका बाज़ाब्ता राब्ता हुआ है, कोई ताउन मांगा गया है? दूसरा ये बता दें कि 15 से 20 मेंबरान का फ़र्क है, वो कैसे मैनेज होगा? आपको किसने कहा कितना फ़र्क है? अंदाजा जो इंटरनेट से नेट से वेबसाइट से वो कितना फ़र्क है? 10 का 12 का। वो 20 का कहते हैं, वही 10 का कह रहे हैं, ये 12 का कह रहे हैं। चलो जितना यानी कैसे पूरा करें, आप सारा जितना बता कैसे दें। पूरा होगा? मेरे ख्याल में 12 इनके ज़्यादा हैं।
अच्छा, मैं आपको सिर्फ एक चीज़ बताना चाह रहा हूँ, जब मैं प्राइम मिनिस्टर का इलेक्शन लड़ा उस वक्त मुझे 264 वोट्स पड़े और जो अपोजिशन जो मेरे मद्दे मुकाबिल थे उनको 42 वोट्स पड़े और 264 जो मेंबर्स के साथ इलेक्ट हुआ और उन्होंने दरख्वास्त की अपोजिशन को कि आप मुझे वोट ऑफ कॉन्फिडेंस दें और उन्होंने मुझे वोट ऑफ कॉन्फिडेंस दिया, 42 वोट्स दिए। तो उसमें जहां बात चलती है जो हुकूमती सतह पर कि जनाब ये बहुत पैसा चल रहा है, ये चल रहा है, तो वो मुझे 42 वोट्स ताल्लुकात की बुनियाद पे दिए थे उन्होंने, और कंसेंसस वोट जो पड़े थे सारा हाउस ने अगर मुझे वोट दिए थे ताल्लुकात की बुनियाद पर। और इससे परफॉर्मेंस का भी पता चलेगा, एज द परफॉर्मेंस एज द स्पीकर ऑफ द नेशनल असेंबली, एज द परफॉर्मेंस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, एज द परफॉर्मेंस ऑफ द फेडरल मिनिस्टर एंड इवन द चेयरमैन ऑफ द डिस्ट्रिक्ट काउंसिल। और आज परफॉर्मेंस पीडीएम की भी होगी और अपनी ज़ात की परफॉर्मेंस भी होगी। इंशाल्लाह मुझे कभी यकीन है कि पीडीएम की परफॉर्मेंस जो आपके बाई इलेक्शंस में हुई है, मैं उनको मुबारकबाद पेश करता हूं। सर ये बताइएगा कि आपकी ये बात चल रही है कि जहांगीर तरीन से यूसुफ रजा गिलानी की मुलाकात हुई है, राब्ते हुए हैं, कुछ तरदीदें करनी पड़ रही हैं जेकेटी साहब को, तो आप क्या कहते हैं कि वाकई गिलानी साहब की मुलाकात हुई है उनसे? देखें, मेरी मुलाकात नहीं हुई। राब्ता फिर क्या होता है? मुलाकात नहीं हुई। नहीं, ना टेलीफोनिक हुआ है ना मेरी बात हुई है। हाँ, अलबत्ता मेरे अजीज हैं तो उनको कहने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। अच्छा गिलानी साहब ये फरमाएं कि इसमें तो कोई किसी को डाउट नहीं है कि इस्टेब्लिशमेंट की मर्जी के बगैर या उनकी मदद के बगैर ऐसा पॉसिबल है ही नहीं कि आप अक़लियत वाले अक्सरियत में चले जाएं। तो आप समझते हैं कि इस वक्त खान से हाथ खींचा हुआ है इस्टेब्लिशमेंट ने, या आपके साथ कोई ताउन कर रही है, क्या है, या इंडिपेंडेंट हो गई है, क्या हुआ है? देखें, मैं खान साहब का तर्जुमान नहीं हूँ कि ये मैं उनकी बात बता सकूं, मगर जो मुझे बज़ाहिर नज़र आ रहा है कि जो एस्टेब्लिशमेंट है वो टोटली न्यूट्रल है। गिलानी साहब ये बताइएगा कि उस वक्त भी आप एक मुत्तफ़िका उम्मीदवार थे वज़ीर आज़म के, लेकिन मुस्लिम लीग नून ने आपको नाअहल करवाया, तो इस दफ़ा कोई ख़तरा तो नहीं है कि मुंतखब करवा के बाद में फिर कोई? देखें, पहली तो बात यह है कि मुस्लिम लीग नवाज़ उन्होंने मुझे वोट दिया और मुझे कामयाब भी कराया वज़ीर आज़म के लिए, और अब भी मेजॉरिटी पार्टी वही है, नून लीग। इस वक्त हाउस में लीडर ऑफ द अपोजिशन उनका है, शहबाज शरीफ साहब हैं, तो उन्होंने मेरी हमायत की है और टोटल पीडीएम ने की है। तो इसलिए जो पास्ट है दैट इज़ पास्ट, आप प्रेजेंट की बात करें। थैंक यू आपको अल्लाह मुबारक करे। शुक्रिया, थैंक यू। हजूर पे सत्र में दोबारा वापसी कब है? मैं पूछा मैंने शायद बात की बस तो आपका कोई पुराना ही है। हमारे लिए क्या
ہاں جی